انفلوئنس اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ایک بندہ کے ایک آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی کتنے فالوورز ہیں آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں. جہیز لینا نا بند کر دیں پلیز. لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کرنے کے لیے یار, ان کے بیچارے غریب فیملی کے لوگ ہیں, لڑکوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اتنا جہیز دو. ابھی غریب فیملی کے ہیں پڑے, ان کی مطلب 3 4 بچیاں ہیں پڑے, اب وہ کیسے ان کا جہیز اکٹھا کر کے اور جو ہے نا پھر ان کو دیں, اور پھر کیا کرتے ہیں لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں تو بھائی اب لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں ہے تو میں تو اس کو ڈائیورس دے رہا ہوں. جی ڈرائنگ روم کا سامان بھی آ رہا ہے, مائکرو ویو, فریج, اوون, حالانکہ سب کچھ سیٹ بھی ہوتا ہے, پہلے نیا چاہیے. تو پہلے والا سامان کیا لڑکے والے پھینک دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں اور دوسرا لے لیتے ہیں. کیا ایسا بس ایک یہ ہے کہ ایک دو اپنے خاندان کو دکھانا ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہماری بہو آئی ہے اور یہ چیزیں لے کے آئی ہے. کہ یہ سارے جو ہے نا ان سے اچھے تو وہ ہیں جو گاؤں میں بیٹھ کے ولاگس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کتنا اچھا دکھاتے ہیں, آپ کی کوکنگ کا بتا رہے ہیں, گھر دکھا رہے ہیں کہ ولیج لائف کیسے ہوتی ہے, اور اچھی لگتی ہے نا شہری زندگی. وہ ایک پاکستانی فیملی ولاگز کوئی آتا ہے, پتہ نہیں وہ پتہ نہیں ٹی بی ٹی کے نام سے آئی تھنک وہ ولاگز بناتا ہے. وہ اس کے ویوز بھی کافی اچھے ہیں مگر اتنے اچھے پھر بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیرا کے گرنے کے ویوز. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اتنے آپ کو ویوز مل جاتے ہیں. ویسے میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ جو سندس ہے نا, وہ شاہویر کی جو کزن ہے, مجھے وہ بہت پسند ہے. وہ سے جینوئن بندی ہے نا. مجھے نہیں پتا شاہویر کو. السلام علیکم ایوری تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے فار اندر ایپیسوڈ آف پاکستان فار اس. اور وی آر بیک 3 A's اور یس 3 A's اور عید مبارک. عید گزرے پہ سے کافی ٹائم ہو گیا ہے نا. مبارک سب کو. ایک ہفتہ تو ہو گیا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا, سنڈے کو تھا. ایک ہفتہ یار جی جلدی ٹائم گزر گیا. ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی مطلب 2-3 دن پہلے عید تھی. چلے ہم لوگ عید کا 4تھا-5واں دن منا رہے ہیں. ہاں ہم عید کا 5واں دن منا رہے ہیں. عید مبارک. خیر مبارک. آج ہاں ہم کیا بات کریں گے؟ ہائی لو کافی ٹاپکس ہیں لیکن انم اسٹارٹ کریں گی. کون سا ٹاپک؟ میں اسٹارٹ کروں. چلے میں اسٹارٹ کر لیتی ہوں. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یار یہ لوگ انفلوئنسرز بن کیسے جاتے ہیں. یہاں پہ کچھ ہو بھی تو نا انفلوئنسر والی بات. اور آپ انفلوئنس بھی تو اچھا کر رہے ہو نا, آپ غلط انفلوئنس ڈال رہے ہو. غلط انفلوئنس ڈال رہے ہو. ہاں تو لوگ چلو آپ کو اگر انہوں نے بول دیا کہ آپ اچھا مجھے جو لڑکیاں ڈریسنگ کی جو ایک وہ دونوں بہنیں نا ہیرا بھی اور وہ دوسرے والے کے نام مجھے وہ دونوں بہنیں اچھی لگتی ہیں. وہ ڈریسنگ سینس اپنے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہو. چلو ٹھیک ہے وہ ایک چیز اچھا آپ کو بتا رہی ہیں, لیکن جو باقی فضول قسم کی ویڈیوز بنا کے ایسے کر کے بھی کیا تم لوگ انفلوئنس کر رہے ہو اور بتا رہی ہوتی ہیں. ہماری تو بھائی 6 اسٹیپس اسکن کیئر روٹین ہے بھائی. جو بیچاری لڑکی گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, شی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو دوز 6 اسٹیپس ان ہر لائف. اب وہ تو برا ہی فیل کر رہی ہے نا. وہ تو ایسے نا کہ لائک ٹھیک ہے مطلب تم تو بہت لو ہو, میں تو 6 اسٹیپس کر سکتی ہوں. تو وہ ان میں ایک فیئر بڑھ جاتا ہے نا جو نہیں کر سکتے, اور وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب ایک افورڈیبل یار آپ لائن کرو. اگر آپ نے کچھ اپنے انفلوئنس کرنا ہی ہے تو آپ $100 کے جھمکے بیچ رہے ہو, آپ کچھ اچھا انفلوئنس کرو کہ سارے افورڈ کر سکیں. کرینہ کپور کی وہ ویڈیو نہیں تھی انفلوئنسر. یہ گندی شکل بنائی تو یہی گندی شکل نا قسم سے بچوں کو بھی بلیم کرتی ہوں. مطلب بچیاں ہیں 17-16 سال کی بیٹھ کے دیکھی ہی جا رہی ہیں. مطلب تم لوگ یہی دیکھو گے بس, اور نہیں کچھ پڑھنا نہیں ہے لائف میں. یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کچھ یوٹیوبرز بھی جو ہیں وہ بھی مطلب کیا فضول سی ویڈیو بناتے ہیں نا. آج ہمارے پردے آ گئے, یہ ٹائٹل ہوتا ہے. اچھا, اور پوری آج ہمارے پردے آ گئے 1 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے. اس سے بھی ساری بات ہوگی. اچھا ہم نے آج اپنا روم سیٹ کیا. اور پتہ ہے پوری ویڈیو کچھ نہیں ہوتی, اینڈ کے اوپر 5 منٹ پہ پردے آتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں, باقی سب شروع میں ایسے. یہ کیا انفلوئنس کر رہے ہیں, دیکھتے کیوں ہیں؟ مطلب میں یہ سوال ہے کہ تم دونوں نے کیوں دیکھی ہے ویڈیو؟ تم دونوں نے بھی دیکھی غلط کیا, تم پھر کیمرے سے نکل رہی ہو. مجھے نا وہ جو ماس صفدر ہے نا اس کے ولاگس بہت اچھے لگتے ہیں. وہ گھریلو ولاگس ہوتے ہیں, بے شک وہ تھوڑا سا ماس صفدر ہے کراچی کا. لیکن یار اس کا بھی وہی ہے کہ وہ ٹائٹل نہیں ہوتا, ٹائٹل اس کا ابو نے آج ہمیں مارا. اچھا اس کے اوپر 1 گھنٹے کی ویڈیو یار وہ ہلکے سے چپیڑ لگاتے ہیں. وہ انکل مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں, ماں باپ ان کے بہت اچھے ہیں. حالانکہ یار دیکھو مطلب پہلے کنٹینٹ ہوتا تھا, تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا تھا, بچے تھوڑا اچھا سیکھتے تھے. کسی چیز میں ایجوکیٹ کرو. یہ کیا ہے کہ میرے گھر پردے آ گئے, اس پہ 1 گھنٹے کی ویڈیو اور ان کے ملین لائکس ہیں. میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ 1 گھنٹے پہلے ہوئی ہے, مطلب اس میں کیا ہے, اور ملین لائک ہوتے ہیں یار. اور وہ بیچاری وہ بول دوں میں کیا, وہ جب جن کا ذکر جس جو عمل نے ویڈیو دکھائی ہے, بول دوں میں. ہاں اچھا یار دیکھیں سسٹرولوجی کی میں کل ویڈیو دیکھ رہی, وہ نا پتہ نہیں کون گری, ہیرا نیچے گر گئی, تو
तो उस पे हीरा को नजर लग गई ना, उस पे इतने व्यूज आए हुए, मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हुए उस वीडियो कि वो नीचे गिर गई। हाँ, वो ये लिखा हुआ कि हाँ हीरा को नजर लग गई। तो ये क्यों देखा आपने, मतलब बताएं मुझे, जवाब दें। पढ़ना लिखना जिंदगी में खत्म हो गया है। एजुकेशन ले, आप बैठ के देख रहे हैं, पर्दे आ गए, हीरा गिर गई नीचे। मैंने आपको इतनी अच्छी वीडियो बना के दी कि भाई खाड़ी का सूट ना लें, उससे इन्वेस्ट करें, आपको आगे कितने पैसे आएंगे 3 साल में, वो आपने नहीं देखी, आपने हीरा को गिरते हुए देख लिया। अच्छा, एक चीज मैं सोशल मीडिया की इसी वाकई में बताऊं कि जिनके पास टैलेंट होता है ना, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और ना उनको ना मतलब देखते नहीं है कि यार लोग कहते हैं भाई चुप, गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, तो जो फजूल वीडियोस बना रहे होंगे ना, उछल कूद कर रहे होंगे, मतलब फजूल हरकतें कर रहे होंगे, उस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए होते हैं। मेरे ना दो अच्छा, मैं ना ये टैलेंट की बात करेंगे, ये लोग हंस रहे हैं, इनको हंसे दो, मैं अपने टैलेंट की बात करती हूँ। अपना टैलेंट नहीं, मतलब मेरे 2 बड़े प्यारे से कजन्स हैं फिर, वो इतना अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा, वो थोड़ा शर्मीले हैं फिर, वो एक गिटारिस्ट है, दोनों भाई हैं, एक गिटारिस्ट है और बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ यार तुम लोग कितने, मैं देखो अब इस पे मैं तुम लोग की बात करूँ, तुम लोग कितना अच्छा गिटार बजाते हो ना, मैं उनको कहती हूँ कि भी तुम लोग ना शुरू करो, कहते हैं ना मैम हम करते हैं, मतलब कोई व्यूज़ ही नहीं आते हैं। मैं कहती तुम लगे रहो, तुम लोग अपनी सिंगर्स को टैग करो, वो बेचारे बहुत करते हैं। एक भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो भी गिटार बहुत अच्छा बजाता है यार, वो वीडियोस लगाते हैं, उसका अपना पेज है, पर लोग देखते नहीं। यही बात है ना कि क्योंकि आपने हीरा को गिरते हुए देखा। नहीं, वो आप लोग एक नेपाली लड़की है, नेपाली कौन है वो, इतना बेसुरा गा रही है, वो कैसे उसका मैं करूँ से चुरा लो। मैंने नहीं देखा, उसको आप लोग देखो लाइक्स इतने दे रहे हो, वो इतना फजूल गाना गा रही है, क्या वो बस लाइव आती है माइक लेके ना, हाँ, और ऐसे रिंग लाइट पीछे लगाई होती है, तो मैं दिखाती हूँ, हमारी फेवरेट हो जाएगी। क्यों देखते हो, क्यों? जवाब दो, आज इस चीज का जवाब दो कि मतलब कोई अच्छा काम नहीं रहेगा अच्छा, पता देखने है के कि लिए। ना, मैं ये कहूंगी कि ये सारे जो है ना, उनसे अच्छे तो वो हैं जो गांव में बैठ के व्लॉग्स कर रहे हैं। Exactly. वो कितना अच्छा दिखाते यार, हैं, cooking authentic- vlogs आपकी होते हैं, कुकिंग का बता रहे हैं, घर दिखा रहे हैं कि simple विलेज लाइफ life कैसे है, होती simple है, life। अच्छी लगती है ना मुझे शहरी वो जिंदगी वीडियोस, बहुत- मैं वो एक बता नहीं सकती। पाकिस्तानी फैमिली बग्गी ब्लॉग्स life कोई आता लेके, है, हाँ, पता नहीं, मैंने कुछ वही ऐसे देखा है, है, वो हाँ। ट्यूब या ठीक है, से उनकी वीडियोस हम अच्छी है, वो बिल्कुल मतलब बताते हैं गाँव वो की जिंदगी कैसी लाइफ है, कैसी है, और वो एजुकेशन authentic है। है। हाँ, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक लड़का है मुजम्मिल, वो पता नहीं यूट्यूब पे TBT के नाम से आई थिंक वो व्लॉग्स बनाता है, वो उसके व्यूज भी काफी अच्छे हैं, मगर उतने अच्छे फिर भी नहीं है जितने ये हीरा के हाँ, गिरने के इनकी व्यूज छोटी सी बात होती है, इतने आपको व्यूज मिल जाते हैं। वैसे मैंने कभी नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊं, मैंने इन सारे ब्लॉगर्स को कभी नहीं देखा, अच्छा, क्योंकि मैं मैंने हमेशा देखा नहीं, पढ़ने तो लिखने मैंने में भी लगी। आंखें दर्द होना टिकटॉक शुरू के होती है, ऊपर ही, अच्छा। मतलब वो आ जाती है ना, ये जो रोनी थी, मतलब पहले मुझे अच्छी लगती होती थी, अब जब से इनकी ये सब चीज़, जब से उसकी शादी हुई है उसके साथ बड़ी वाली की, अब उन्होंने ये सब चीज़ें शुरू कर दी हैं, मतलब छोटी सी बात को इतना, और लोग इतना वो करते हैं कि देखो अच्छा मजाक, मतलब चलो हम तो नहीं देखते, मजाक नहीं उड़ा रहे यार हम, लेकिन लोग मजाक भी उड़ाते हैं इन सब का। तो यार तुम लोग ऐसी चीज़ें बनाते ही क्यों ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा ना कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे ऐसे पीछे, मतलब उनको कोई देख नहीं रहा, उनको उनकी कोई कदर ही नहीं कर रहा, और जो फजूल चीज़ें कर रहे हैं, तुम लोग उनको लाइक्स भी दे रहे हो, तुम लोग उनको शेयर भी कर रहे हो, तुम लोग उन पे अच्छा मीम्स बना के भी उनको फेमस कर रहे हैं। भाई तुम मत करो यार, जेन्युइन टैलेंट को तो कोई सपोर्ट मिलती नहीं नहीं है ना। support करा, फिर आप जब खुद यही देख के बच्चे बड़े होंगे कि यार हमने भी बस यही वीडियो बनानी है, वो एक शायद है ना, हम वायरल हो जाएं, तो ये शायद क्या है, viral हो जाएं। ये हाँ, क्या यहाँ पे मतलब सब कुछ मेंटालिटी होती है। इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल होता है कि हाँ एक यार, बंदा आके influencer एक आपकी जिम्मेदारी है यार, जिम्मेदारी है आपकी। आपकी, आप कितने फॉलोअर्स हैं, आप पे जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को सिखाएं यार कि अच्छी हाँ चीज़ें आप बताओ आप ब्रांड्स पे खर्च करना बंद करो। आप 8 इवेंट्स करोगे शादी के, वो लड़की जो बेचारी घर में देख रही है उसका भी दिल करेगा ना देख के, बल्कि हम भी उसको ये आप वाले कहो कपड़े कि यार पहने, हम भी नहीं। इतने फंक्शंस करें अपने वहाँ पे। मुझे वो अच्छी लगती है, वो एक है इंस्टाग्राम पे आती है वलिया नजीब, हाँ, उसने अपना निकाह अपनी शादी भी सिंपल रखी, सिंपल बहुत किया वो उसने, हाँ। नहीं गई। अच्छा, और शादियां भी Over the इन्होंने top. करनी होती हैं 8-9 दिनों की, ऊपर से जो ड्रेसेस होते हैं ब्राइडल शावर का, यहाँ ब्रांड से आ रहा है और वहाँ से वहाँ ब्रांड से आ रहा है, मतलब केक कितना बड़ा है, कहाँ से आ जाते हैं। मैं कह रही बात स्टार्ट करो प्लीज। जी बात स्टार्ट करते हैं। और अनम, तुम अभी एक बहुत अच्छी बात करी थी जो तुम भूल गई हो पिक्चर्स के चक्कर में। जहेज के तुम बात करी थी जहेज के ऊपर, तुम बात करी थी कि मैं जहेज की, हाँ मैं जहेज की बात करी थी, तो मैं ये बात करी थी जहेज की कि जहेज लेना ना बंद कर दें प्लीज़। लड़कियां बैठी हुई हैं शादी करने के लिए यार, उनके बेचारे गरीब फैमिली के लोग हैं, लड़कों की डिमांड नहीं होती है कि भाई हमें इतना इतना जहेज दो। अब
अभी गरीब फैमिली के हैं पड़े, उनकी मतलब 3-4 बच्ची हैं पड़े, अब वो कैसे उनका जहेज इकट्ठा करके और जो है ना फिर उनको दें, और फिर क्या करते हैं लड़के वाले, कहते हैं हमें तो भी अब लड़की के साथ रहना नहीं है तो मैं तो इसको डाइवोर्स दे रहा हूँ, बच्चा पैदा हो गया फिर आप लड़की को डाइवोर्स दे रहे हो, जहेज भी आपने ले लिया, फिर आप कह रहे हो कि हमें तो इससे भी कोई वो नहीं है, मतलब मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, फिर आप चाहते क्या हो लड़के के साथ भी, क्या लड़की क्या होनी चाहिए ये बताओ आप। गाड़ी भी चाहिए, जहेज गाड़ी भी दी है, गाड़ी भी दी है यार, फिर उसके बावजूद भी लड़की बेचारी अब घर पे बैठी हुई है और लड़का अपना मतलब मस्त है पड़ा। अच्छा मुझे एक कॉन्सेप्ट, सॉरी मैं बात कर रही हूँ मगर समझ नहीं आता कि ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो मेरा ख्याल है हर फैमिली में ही होता है कि जहेज पे ना, अच्छा जी ड्राइंग रूम का सामान भी आ रहा है, माइक्रोवेव, फ्रिज, अवन, हालांकि सब कुछ सेट भी होता है, पहले नया चाहिए, तो पहले वाला सामान क्या लड़के वाले फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं और दूसरा ले लेते हैं, ये मतलब क्या ऐसे लालच क्यों है कि एक दो अपने खानदान को दिखाना होता है कि यार देखो हमारी बहू आई है और ये चीज़ें लेके आई है, हद हो गई है। और अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, जो अमीर खानदान के लोग हैं वो ये सब चीज़ें करते भी हैं, अफोर्ड कर सकते हैं वो, लेकिन आप प्लीज़ ख़त्म कर देना इस चीज़ को, आप जहेज ये खत्म करती है। मेरे जो गरीब माँ बाप होते हैं, चले मिडिल क्लास भी हो जाएं, और अगर वो कहें मना करते हैं कि हमने नहीं मतलब नहीं देना, तो कहेंगे आप पैसे दे दें, अगर बाहर जा रहा है तो पैसे दे दें, हालांकि मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग मनी इफ लाइक वो बाहर जा रही है या बाहर जा रहे हैं, आपको वहाँ सामान भी चाहिए और फिर आप कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे दो कि ये लोग वहाँ पे भी सामान ले लें, तो फिर एक मुझे समझ आती है कि आप लड़की भी लेके जा रहे हो और आप साथ में सामान भी लेके जा रहे हो, फिर भी लड़की की कोई कदर ही नहीं है घर पे, तो मतलब क्या तुम लोग सोच क्या रहे हो, उसको आपने इतना गंदा ट्रीट करना है, उसको कोई मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फिर आपको जहेज चाहिए, और फिर आप ताने भी देते रहते हो कि इनफ नहीं था, ये भी और चीज भी होनी चाहिए, ये चीज अच्छी नहीं भी होना चाहिए था, उससे उसकी देखी थी वो कैसी थी, ये तुम्हारा ये अच्छा नहीं था, फिर कंपैरिजन भी होता है जहेज को लेके चीजों में, मेरी बहू तो ये लेके आई थी, तुम्हारी क्या लेके आई है, ये कितना सोना चढ़ाया उसको, कितना लेके आई है सोना। अच्छा मैं एक ना एग्जांपल देती हूँ, गरीबों के अलावा अमीरों में भी ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी, अमीर मतलब क्या मैं कहूँगी, मैं एलीट क्लास की एग्जांपल दे रही हूँ अब ये, कि ये वो एग्जांपल है कि जिनके घर में BMW जैसे खड़ी होती हैं, ठीक है। अब उस लड़की की शादी होने वाली थी, विद इन लाइक 3-4 मंथ्स उसकी डेट थी ना शादी की, तो उस लड़के ने कहा कि आओ मेरे शहर आओ, आई विल टेक यू आउट और वलीमे का ड्रेस पिक करेंगे। वो लड़की आई, अब ये मेरी अपनी फ्रेंड का किस्सा है, वो लड़की आई और उसके साथ गई, वलीमे का ड्रेस तो जो पिक किया, वो लड़का उसे शोरूम पे लेके गया गाड़ी की, और उसको कहता है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए, शादी से पहले मेरे घर डिलीवर कराओ। फिर डिज़ाइनर के उस पे लेके गया, फिर उसने डिज़ाइनर के कपड़े चूज़ किए, ये मेरी मदर के लिए तुम भिजवाओगी, ये मेरी बहन के लिए भिजवाओगी, और ऐसे उस लड़की ने शादी तोड़ दी। सोचो शी वाज डेवास्टेटेड। मगर ये हर क्लास में है, इतना ज़्यादा पाकिस्तान में लोग ऐसे आराम से, और ना कंपैरिजन वो क्या लेके आई थी, और पंजाबी में बोल भी देते हैं ना शादी के दिन ही। हाँ, मैं कहती हूँ वो लोग बहुत लकी हैं जिनके हस्बैंड या उनकी पेरेंट्स की सोच है कि बिल्कुल कुछ नहीं लेना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी से कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे जब तक बच्चे जो है ना बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, जब तक ये अपना घर नहीं बना लेते, जब तक ये अच्छी जॉब नहीं कर लेते, तब तक इनकी शादी नहीं करूँगी। मैं कहा तुम लोग अपना घर बार बनाओगे। मैं तभी शादी से बोलती हूँ कि बेटा ऐसी लड़की नहीं मिलनी, जब तक कुछ करने लोगे ना वो तो इतना छोटा सा है, छोटा है, मैं फिर उसको कहती रहती हूँ, वो तभी छोटा होता है। नहीं वो तो ज़यान माशाल्लाह, वो तो उसने कहना कि मम्मा आपकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे आपसे परमिशन लेने की, उसे तो वैसे ही निकल जाना है, उससे मुझे बड़ा होता है। अनम रिलीजन में भी है ना कि जब लड़का लड़की की शादी हो जाए उनका खेमा अलग कर दो, ये थोड़ी हो रहा है कि लड़की खेमा बना रही है, ये अलग रहेंगे। और ये बहुत ज़रूरत है कि कभी लड़के जो शादी के बाद अलग हो जाए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव विद द इन-लॉज इतना, और बहुत मुश्किल। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो गुजारा कर लेते हैं, जिनको आदत होती है, क्योंकि उनके घर में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनको कोई इतना नहीं लगता। लेकिन जिनकी छोटी फैमिलीज हैं, फिर भी मतलब यार आप उनको अपनी लाइफ, आप ना लेट देम लिव देयर लाइफ एंड ग्रो अप टुगेदर, मतलब वो आपस में एक दूसरे को समझें। अगर आपके साथ रहेंगे तो they're still under your radar, और मतलब exactly ये करना है वो करना है, आप अपने सास ससुर के साथ भी रह सकते हैं, अगर सास ससुर जो है ना इंटरफेयर ना करें आपकी ज़िंदगी में, प्राइवेसी मतलब वो भी चलो अपने बेटे के साथ है एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इंटरफेयर मतलब हर चीज़ में ना करें। देखो ये तो जिम्मेदारी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझसे पूछा तुमने, मुझसे इजाज़त ले बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साथ ले जाओ डिनर पे, तो फिर आप उनको स्पेस कैसे दे रहे हो?
नहीं, मैं स्पेस तो का अपनी सास को कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत ज़बरदस्ती लेके चलते हैं, चले हम इतने से बात आते हैं, आप भी आप अकेली बेचारी होते हैं, नहीं चले हमारे साथ, तो मैं उनको साथ खुद लेके अगेन पहले हम ये डिस्क्लेमर दे दें कि हम अपने ससुराल के बारे में बातें नहीं बातें कर नहीं रहे, करें, हम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, तभी हमें ये चांस मिला है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये बातें कर रहे यार हैं. हम लोग ना अपने जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें चल रही होती है ना, उनको लेकर बात कर रहे हैं. और प्लीज़ कोई माइंड ना करे, ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है, आप सबका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है. एग्जैक्टली. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये सबका ही ओपिनियन है. मेरी जितनी भी फ्रेंड्स ने देखा तो कि हाँ मतलब ये बात सही की है, ये वाली बात. ये तो मेरी एक फ्रेंड है, वो बेचारी जो है ना बहुत अच्छी है, टॉपर है वो. अच्छा. मतलब एवी सी नहीं है, टॉपर है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और पर उसकी शादी वादी हो गई, वही उसके सास के साथ मसले हैं, जेठानी के साथ. चलो ठीक है, सास तो ठीक है, ये जेठानी और देवरानियों के मसले क्यों होते हैं, मुझे यही ये तो समझ जॉइंट नहीं फैमिली का आती. मसला है, जो मतलब एक मतलब कंपटीशन भी चल रहा जेठानियाँ भी है. होती हैं, वो भी अपना ना होल्ड चला रही होती हैं अपनी छोटी देवरानियों पे. भाई क्यों भाई, मेरी भी देवरानी, मैं तो कभी उस पे होल्ड नहीं चलाती. क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि सास करती है तो उनको होता है कि हम किस पे गुस्सा उतारे हैं या हम किस पे करें, तो वो भी फिर वही रोल में तो वो बेचारी ऑटोमेटिकली इसी चली पे जाती है. अक्की गलत नक्की बात होती है बहुत. कि यार मेरी जो सास है और मेरी जो जेठानी है ये मुझे जीने नहीं दे रही. मैंने कहा तुम्हारा शोहर अच्छा है, कहते शोहर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये जो है ना फटे डलवा. शौहर कैसे अच्छा है अगर वो अपनी बीवी को पिसता हुआ देख रहा है, तो वो शौहर अच्छा तो नहीं है. आई एम सॉरी टू से. और ये कॉन्सेप्ट मतलब ये एक साइकिल है ना कि वो सास के अपने ऊपर जुल्म हुआ, अब वो अगले आके बहू पे जुल्म कर रही है, और आगे वो उसकी. और मैंने कल एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी कि एक आदमी ना रो रहा था और वो कह रहा था कि मेरी बेटी को ना मेरा शौहर नहीं, सॉरी, मेरी बेटी को ना मेरा दामाद मार रहा है ना. तो वो रो रहा था, तो उसकी बीवी ने उसे कहा अपनी बेटी के लिए इतना दुख हो रहा है, मैं भी तो किसी की बेटी थी. तो वो चुप हो गया ना. और मुझे ये चीज़ इतनी क्लिक की कि हाँ ऐसे होता है. मतलब आप अपनी बेटी के लिए इंसान बहुत बदल भी जाता है, और कहते हैं कि मेरी बेटी को कोई आंच भी ना आए. नहीं, और जब अपनी बेटी बीवी शादी के करके साथ जाती जब है आपने- हाँ. तो जब आपको मिलने आती है वापस, आप उसको कितनी रिस्पेक्ट कहते हो और कहते हो कि तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा, तुम खुश हो. और वही जो आपकी बहू है उसको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो जैसे कि लाइक सर्वेंट है, राइट. हाँ, मुझे समझ आती है. आप देखिए दुनिया कहाँ पहुँच गई है इस 2024. एग्जैक्टली लास्ट सेंचुरी चल रही है ये. तो अभी भी लोगों के ये तौर तरीके हैं, ये जो है ना कि और आई बहू थिंक जो दिन है ब दिन वो घर पे- वर्स होते जा रहे हैं, वर्स होता जा रहा एक है. दूसरे के साथ कंपटीशन में कि तुम्हारे बेटे बहू ने क्या किया, हम भी वही करें, वही कपड़े, ये वो सारा और जैसे जैसे पैसे की तंगी आ रही है ना पाकिस्तान में आजकल, क्योंकि जाहिर है एक डिवैल्यूएशन भी हो रही है, जीडीपी भी ग्रो नहीं कर रही, तो जितना जितना पैसे की फ्रस्ट्रेशन है वो सारी भी बेचारे ऐसे बहू पे निकाल दो, नौकरानी पे निकाल दो, इस पे निकाल दो, उस पे निकाल दो. ये कॉन्सेप्ट ना समझ नहीं आता मुझे. यार पता नहीं इन लोगों का क्या होगा. वैसे मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे ना जो अंग्रेज एम्पायर है वो इन सब चीज़ों में नहीं आते हैं. और देखिए वो कुछ न कुछ भी उनका अपना होता है, और और पेरेंट्स को भी वो इन्वॉल्व नहीं separate करते भी इन रहते चीज़ों हैं में, और वो सेपरेट खुश भी रहते रहते हैं. हैं, जहेज खुश वाला रहते सीन है ही नहीं. मतलब जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि एक मुसलमान को करनी चाहिए ना, वो ये सब लोग कर रहे हैं. हम मुसलमान एग्जैक्टली नहीं कर रहे, बिल्कुल भी इतना नहीं कर मुझे रहे. दुख होता है इसे सोच के कि यार हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं. अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, हम सबको भी हदायत दे, साथ में तुम लोगों को भी हदायत देना ताला. हमें जहेज भी दो, हमें सामान भी दो. और एक और चीज़ जो मुझे सबने कहा था मेरी शादी से पहले, और मुझे बड़ा डर भी लगता था सुन के, स्टोरीज लड़कियां लाइक माय ओन फ्रेंड्स दे यूज्ड टू टेल मी कि वो आई शादी करके और अगले ही दिन इन लॉज ने आके कहा कि भाई अपना जेवर जो है ना वो हमें दे दो. वो लेके बैठ गए. मतलब वो उसके पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे बनाया होगा. वैसे तो अब मैं कहती हूँ आर्टिफिशियल देना चाहिए ज्वेलरी, मैंने तो लिया ही नहीं. हाँ नहीं देना चाहिए. मैंने तो, मुझे ना शौक है, मैंने तो वैसे मना किया था. मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है. मैंने अपने बस मान से बोला कि मतलब अपने शौहर से बोला कि एक मुझे मतलब एक छोटी हो और इयरिंग्स वगैरह. इयरिंग्स तो खैर मेरी सास ने वैसे मुझे पहनाए हुए हैं. मुझे शुक्र है वैसे कोई इतना शौक ही नहीं है इन सबका, तो मैंने तो वैसे मना किया था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. मगर ये जो होता है मतलब देखो तुम्हारा आई थिंक एक्सपोजर नहीं होगा, तुम पाकिस्तान में नहीं रही. यहाँ पे बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे नहीं होता यहाँ ना पे ऐसे. बहुत- यहाँ पे ऐसे नहीं होता. नहीं यहाँ पे कौन कोई अंग्रेज कहेंगे हमें अपनी ज्वेलरी दे दो, नहीं, यहाँ कभी पे नहीं करेंगे पाकिस्तानी ये. यहाँ पे रह के थोड़े डिफरेंट हो गए हैं कंपेयर टू लाइक हाउ देयर इन पाकिस्तान. और यहाँ पे ये है कि लाइक जहाँ से मैं रहती हूँ, लाइक वो बहुत डिफरेंट है. और सबने अपनी बेटियों को अलग घर भी, मतलब वो अलग घर में शिफ्ट हो गए हैं, मिलने आते हैं, और उन्होंने मिल के अपना घर बनाया. ये नहीं कि पेरेंट्स ने उनके पूरा घर सजाया. वो दोनों ने जॉब की, अपने आप में मतलब किया, और फिर लड़का लड़की दोनों जब चीज़ों को वो करेंगे ना, बनाएंगे, तब उनको उस चीज़ की ना कदर भी होगी कि यार ये चीज़ हमने खुद बनाई है, तो हमने इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है. तो वही चीज़ वो भी अपने बच्चों में भी लाएंगे. तो ये तो फिर आपके भी जहेज भी लड़की की तरफ से आ रहा है, सामान मतलब हर चीज़ लड़की की तरफ से आ रही है, गाड़ी शाड़ी हर चीज़.
और उसको पूरी शोहर जिंदगी ने, पे हालांकि जिम्मेदारी शोहर की है कि तुमने हर चीज़ प्रोवाइड करनी है अपने बीवी बच्चों को, तो बीवी हर चीज़ लेके आ रही है। अच्छा, जायदाद में भी हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए। अगर वो बीवी का हिस्सा है तो वो ऑटोमेटिकली हस्बैंड का हिस्सा हस्बैंड का हो हो जाता जाएगा, है, हो जाता है, हस्बैंड के नाम कर दो सब कुछ। और पाकिस्तान में ये जनरली कितना टॉक्सिक कल्चर है। और एक और चीज़ जो मैं टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट कर रही हूँ, सॉरी, बट के ठीक है, तुमने जैसे कहा ना कि लड़के की जिम्मेदारी है फाइनेंशियली कि वो उठाए जो भी जिम्मेदारी उठाए, ठीक है, और फिर लड़की का एक रोल डिफाइन किया होता है जी कि वो हाउस होल्ड का वो करे। अब अगर लड़की भी साथ फाइनेंशियली जिम्मेदारी हाथ बटा रही है, राइट, ये भी बहुत अच्छी बात हो गया। ये अब फिर ये चीज़ है कि फिर आपको उसको उस रोल में एक्सेप्ट भी करना होगा ना। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब अच्छा ये दोनों मिलके, जैसे तुमने कहा ना, घर बना रहे हैं, मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं, मिलके बिल्स पे कर रहे हैं, तो फिर घर पे भी उनको मिलके एक दूसरे का हाथ बटाना होगा। ये क्या होता है पाकिस्तान में कि जी लड़का जो है वो तो किचन का मुंह ही ना देखे। क्यों भाई? वो तो गिलास भी नहीं उठा सकता बस, तो क्योंकि वो बाहर काम करता है तो वो कुछ और कर ही नहीं सकता जिंदगी वो में। कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मर्द है ना, वो मर्द ये है कि बस सोफे पे बैठ के ना सबको बस ऑर्डर देगा, उससे खुद से वो उठ के पानी का गिलास तक नहीं पिएगा। अगर पानी का गिलास उसको ला के दे रहा है तो उसकी इतनी जो ना हिम्मत नहीं होगी कि वो उठा के ना उधर से इधर कर दे। कौन सी शहजादों की बच्ची हो तुम लोग हैं, वैसे ये तो बताओ जरा मुझे। मतलब है खुद और अगर गलती से तुम लोगों को पता चले, और अगर गलती से उठा भी लिया तो इतनी प्रेज मिलती है कि ओहो हो मेरे बेटे ने आज गिलास उठाया, बेस्ट डे एवर। मतलब मैंने ये देखा, मैं एक फ्रेंड के घर गई और वो उसका अभी बेबी हुआ था, ठीक है, शी हैड अ सिजेरियन, और उसका मतलब सर्जरी के जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह थी वो चल रहे थे, और वो ना अपने बेबी को गोद में उठा के फेरी थी। और मैंने कहा कि भाई नहीं, मतलब भाई करें केयर बेबी की ना, कैसा कनेक्शन है। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, तो उसने कहा कि नहीं, वो कहते हैं मैं नहीं उठाता, मुझे डर लगता है। भाई ये क्या बात हुई, डर क्या लगता है, अपना बच्चा है उसका ख्याल रखो। 50% आप दोनों का है तो दोनों की रिस्पांसिबिलिटी मेरे हस्बैंड ने भी की थी। कहते हैं यार सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, कहते यार इतना छोटा, उनको ये था कि इतना छोटा मैं कैसे उठाऊंगा, मैं गिरा ना दूंगा पे, उनको यही होता था। मैंने कहा कि ये पहला डायपर शाहजहान का मेरे हस्बैंड ने चेंज किया था, तो देखो क्या था, मैं उठ नहीं सकती हूँ, मान नहीं करना था, नर्स आई है, 2 दफ़ा नर्स ने चेंज किया। फिर मैंने कहा देखें आप, मैंने कहा मैं नहीं उठ सकती, मैं मर जाऊंगी अगर मैं उठी ना, क्योंकि इतना पेन था मुझे, क्योंकि मेरी सब उन्होंने फिर डायपर किया था। फिर उनकी जिम्मेदारी थी। मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं कि किसी के, तुम लोगों को पता ही है कि वो छोटा बच्चा उठाए तो वो डर जाए, सोच के ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि बच्चा इतना बेचारा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा ऐसे से, तो वापस ही ले लेते हैं। देखो आदत नहीं होती, मगर जब अपना बेबी हो तो आपको ख्याल रखना पड़ता है। मगर ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी बच्चा अब हो गया, अब वो बेचारी वाइफ ही बस करे। अच्छा, और मैंने देखा है कि मेरी पर्सनल फैमिली में भी कि कोई है जानने वाले जिनके बच्चा हुआ और वो ही वाज आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो अटैच नहीं हो सके, और उन्होंने ये कहा कि मतलब बेबी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, जैसे लाइक 4-5-6 मंथ्स का, तब उन्होंने उठाना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने बेबी को टच भी नहीं किया। मतलब वो रोता है जो भी करता है, वो कहते हैं कि नहीं मैं उन्हें पोस्टमार्टम चल रहा था, मतलब वो बीवी बेचारी। हाँ, पैटर्निटी ये भी होता है, पोस्टमार्टम और मैटरनिटी तो होता ही होता है ना, मतलब मदर का भी होता है और फादर का भी होता है, हमें पता नहीं होता वैसे। मगर देखो आप 6 मंथ अपने बेबी को अबैंडन कर रहे हो, बीवी कितने डिप्रेशन से गुजरी होगी। वही जो टाइम होता है वो आपके बेबी को आपकी टच का वो होता है, राइट? हाँ, कि आपकी बेबी को आपकी टच का होना चाहिए। आप 6 मंथ्स के बाद अपना बेबी पकड़ रहे हो तो वो कहेगा ये कौन है? एग्जैक्टली, इसे तो आदत ही नहीं है। इसके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि ना यार ये जब थोड़ा सा होगा ना, जब क्रॉलिंग करेगा, थोड़ा सा हंसने लगेगा, तब इसको ज़्यादा फिर मैं अट्रैक्ट हूँगा इसकी तरफ ना। तो फिर जान खुद मान के पास जाता था, तो मानने का ये शहजादा है मेरा ये। मैंने कहा देखिए वो आपसे कितना प्यार करता है। अच्छा मान जैसे आके मान का आपके साथ लेट जाएगा, मैंने कहा मानो कितनी मोहब्बत करता है, उतनी मोहब्बत मुझसे नहीं करता। मैंने कहा आपसे ज़्यादा करता है, हालांकि ज़्यादा उसको मैंने वो किया है। पर वो मान तो कहते बाबा, उससे कौन है कि जायान आप इसको प्यार करते हो, कहते बाबा बाबा ऐसे करा जाए। ठहर क्यों भाई? मामा तो दोनों की मामा भी है ना, बाप डोनट चाहिए तो मामा के पास आ जाता है। फ्यूचर में देखेगा वो ये ब्लॉग और डोनट चाहिए, दूध चाहिए, रात को कुछ भी चाहिए, मामा। मैंने कहा यार बाबा बैठे हैं, बाबा को क्यों नहीं कहते आप तो। और दूसरा ये कि लाइक आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट जब आपके घर बेबी होता है तो आप उस कपल को स्पेस दें। ये नहीं कि आप हर बात में बोलें ऐसे नहीं लिटाना, ऐसे नहीं बिठाना, क्योंकि ये तो हर तरह भी होते हैं, मेरी फैमिली में बहुत होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और मेरी मामा ने मेरा सर, इसका सर नहीं मामा
सॉरी, लेकिन इसका सर नहीं बना हुआ. सुनिए, मेरी सास भी, मेरी मामा भी, मेरी सास मुझसे नाराज, अन्ना इसका सर नहीं बना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी. मैंने कहा मामा नहीं बनना सर, मैं क्या करूँ, ज़यान की सर की बात है, शाहजहां का इतना सख्त था ना. अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर्स मानती भी नहीं है, वो कहते हैं अगर फ्लैट सर है तो बच्चे को आप ना कोई ब्रेन इसका छोटा हो जाएगा तो उसको कोई ना ब्रेन सिंड्रोम जो भी होता है भाई वो हो जाएगा, तो बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है. तो वो कहते हैं नेचुरली जैसे वैसे नेचुरली, हाँ, या टेढ़ा मेढ़ा हो जैसा भी हो. सही बात है, मतलब नहीं इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उनको भी समझने दें कि भी उन्होंने अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है वो, और उन्हें पेरेंटहुड एंजॉय करने देना, जैसे आपने खुद किया था. आपको अगर आपकी सास ने बहुत कहा था या ससुर ने या मदर ने बहुत कहा था कि भाई इसका ये करो वो करो, आपको भी तब अच्छा नहीं लगा होगा. अब अगर आप उसको, वो पहले ही लड़की पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी हो सकता है हो या एंजाइटी हो उसको, आप उसको कहें तुम गलत भी कर रही हो, तुम्हें पेरेंटिंग भी नहीं आती, तो वो बेचारी कहेगी यार मतलब मैं कहाँ फंस गई यार. हाँ, ये वैसे बहुत होता है, लेकिन प्लीज स्पेस दिया करें कपल्स को, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी. पाकिस्तान में लड़कियों से पूछना कि यार तुम लोगों को डिप्रेशन होता है, कहती नहीं यार हमें तो नहीं होता. मैंने कहा यार तुम लोग को होता है, तुम लोग बिला वजह रोते हो. मेरी अभी कज़न की बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सुना, उसने कोई वीडियो मुझे भेजी, लेकिन अच्छा उसने ना मुझे कोई डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियो भेजी, थोड़ी कोई बात नहीं, तो उसने कहा कि कहती है भाई इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं ना. मैंने कहा ऐसे ऐसे, उसको मैंने सारी चीज़ें बताई. मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है, कहती हाँ यार मैंने, ये तो होता था मेरे साथ. तो मैंने कहा जब अब दोबारा कभी ऐसा हो, मैंने कहा ये होता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका 40 डेज तक हो, ये आपको 6 मंथ तक भी होता है, उससे आगे भी हो सकता है. और मुझे लगता है माँ को डिप्रेशन होता है हर 1-2 महीने बाद ना, या फिर हफ्ते में एक आध दफ़ा माँ को डिप्रेशन ज़रूर होता है. और कोई एक्नॉलेज नहीं करता. हाँ, नहीं सारे करता. कहते हैं कि इसलिए मैंने मैंने बोला बोला ऐसे ही है, ऐसे और अगर ससुराल में तो वो कहेंगे कि इसके नखरे बहुत हैं. हाँ, हमने भी तो पैदा किए थे, ये फेमस लाइन है मैंने चलती है. और ये मैंने अपने घर में ये स्टोरी सुनी है कि वो बेचारी मतलब तकलीफ में माएँ हैं और उन्हें उनके ससुर और सासें आके कह रही हैं कि भाई काम करो तुम, क्या हमने भी तो किए थे, हाँ सफाई करो, उठ के सफाई करो, घर की पोछा लगाओ. वहाँ पे फिर लेकिन बहुत मुश्किल होता है यार, अकेले सी सेक्शन में तो स्पेशली बहुत मुश्किल होती है. नॉर्मल में भी होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी वीकनेस हो जाती है लड़कियों को. डोंट वरी, कोई बात नहीं, बी हैप्पी. जब बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर किसी के अपने सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, हम अपने सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस से जो हमने सीखा है हम वो शेयर करें कि हमें क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है. हम भी ऐसी बहुत सी चीज़ें करते होंगे जो गलत होती होंगी आपके पर्सपेक्टिव से. नोबडी इज परफेक्ट. एग्जैक्टली. एक और चीज़ जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये थी कि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मैंने देखा है कास्ट सिस्टम, राइट, कि वो राजपूत है. अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या ट्रेड्स अटैच करते हैं. टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे कभी कास्ट की डिस्कशन नहीं होती थी. कभी हमें ये नहीं बताया जाता था कि तुम इस कास्ट से हो तो तुम सुपीरियर हो या ये हो या वो हो. तो मुझे नहीं पता, मगर वो राजपूत है, वो जट है, वो अराई है, वो गुज्जर है, या वो ये है, वो शेख है, वो शेख है तो वो कंजूस है. ये तो खैर बहुत ही कॉमन मैंने सुना है. हालांकि मेरी एक फ्रेंड खुद शेख थी और वो ऐसी नहीं थी. नहीं आप शेख नहीं, वैसे मैं शेख हूँ, आप मैं कंजूस नहीं हूँ. ये तो बिल्कुल कंजूस नहीं है. हाँ, ये तो बहुत खुले दिल के हैं भाई, पता नहीं शेखों का वैसे ये देखो ये प्रूफ हो गया. हर कास्ट में भी डिफरेंट तरह के लोग हैं. ये और ये होता है कि कुछ लोग जैसे मतलब मुझे लगता है कि जो 2 नंबरी करता है ना, जो कास्ट से हट कर, यार ये कास्ट वाला सिस्टम तो मतलब है ही नहीं. है ही नहीं, ये पुराना सिस्टम है, ये तो इसको खत्म कर दें. हाँ, ये तो रिलीजन में भी नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते थे कि किसी को किसी पे फजीलत हासिल नहीं है. तो फिर हम ये कैसे करते हैं. और ये मैंने इतना ज़्यादा देखा. अच्छा ना, लोग इस तरह कहेंगे ओह माइंड ना करना, तुम ये तो नहीं हो, मैं इसके हूँ, वो ऐसे होते हैं. अच्छा भाई, मतलब अब मैं और फिर ना मैं हमेशा ये करती हूँ कि जो जिसके बारे में मजाक कर रहा होगा ना, मैं कहूँगी हाँ मैं वही हूँ. फिर वो सारे उनके ना पसीने निकल जाएंगे, फिर वो मुझे कहेंगे ओके, फिर मैं कहूँगी नहीं मैं वो नहीं हूँ. मगर अब होश ठिकाने आए ना, लाइक ऐसे ना करो ना. हाँ जी, उसके लिए रिश्ता आया था, वो ऐसे फैमिली से था. और एक और बात सर मैं काट रही हूँ कि कास्ट सिस्टम में ये भी होता है कि अगर लड़की की मतलब उस कास्ट में शादी नहीं हो रही तो उसको बिठाई रखते हैं यार. कहते हैं अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, बाहर से अच्छे रिश्ते आ रहे होते, बट नहीं, हमने अपनी कास्ट में ही करना है, चाहे वो मर जाए हमारे घर में. एक बड़ा कॉमन है ना कि राजपूत है तो राजपूत में ही शादी करेगा, सिंधी है तो सिंधी में ही और करेगा. ये प्रेशर सिर्फ लड़कियों पे है, लड़कों पे इतना प्रेशर है पर इतना नहीं होता. लड़का भी कहते हैं कि हाँ भी मैं अपनी पसंद से आउट ऑफ कास्ट शादी कर लूंगा, पर लड़कियों को होता है कि नहीं, हमें कास्ट में ही अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना तो लड़की बैठी रहती पूरी जिंदगी बैठी रहती है. क्या लगता है लड़कियों को कोई जज्बात नहीं होते, वो बेचारी बस बैठी रहे वो. और कजन मैरिजेस का भी प्रेशर होता है ना, कितना ज्यादा होता है. जितना भी वो मना करते हैं लेकिन उनको ये होता है कि बस करनी है. यही तो और ये होता है कि अगर वही है ना कि अगर आपको
کاسٹ میں ہی اگر آپ کو کہیں اور سے نہیں ملا تو آپ کہتے ہو چلو کزن میں ہی کر دو, لیکن کرنی ضرور ہے. لیکن آپ اس کے دیکھیں کہ کتنے ڈیفالٹس بھی ہیں نا اس میں, مطلب کہ بہت زیادہ کہ اٹس ویری بیڈ ناؤ ڈیز کہ دیر از اے لاٹ آف مطلب ہیلتھ ایشوز ود دا کڈس. ہاں, اور یہ تو میڈیسن پروف کر رہا ہے نا کہ مطلب آپ کی سیم جینز ہیں, اگر آپ کی کوئی ایک ریسیسو جین بھی ہے نا ڈیزیز کی تو لوگوں کو آٹو امیون ڈیزیز ہو جاتی ہیں جو کیوریبل نہیں ہیں بیکاز ڈاؤن سنڈروم ہوتے ہیں. ایک تو ہاں بچوں میں آپ کے جو ہے وہ یو نو میڈیکلی ہاں آتے ہیں ایسے پرابلمس, ڈیزیزز آتے ہیں. دوسرا آپ اپنے خاندانی دشمنیاں بھی نکال رہے ہو نا, اچھا تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا تھا, اب آؤ ذرا بہو بن کے, اب آؤ ذرا بہو, اس کا جینا حرام کر دو آپ, اس کا جینا حرام. یہ ابھی بھی چلتا ہے یار, یہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ہاں بھی آپ مطلب آپ دیکھو فیملی سے اگر ایک لڑکی لے کے آ رہے ہو نا تو ماں باپ نا اس بھروسے سے اپنی بچی کی شادی وہاں پہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے ایمپیڈ ہے, اپنوں نے کیا کرنا. لیکن اپنے جیسے ہی ہوتا ہے نا, اپنے کہتے ہیں ان کو زخم پتہ ہے کہاں ہے, انہوں نے اسی زخم پہ بار بار نا پریس کرنا ہے کہ نہیں ان کی یہ دکھتی رکھ ہے اور یہیں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. آئی تھنک کہ آپ جب باہر مطلب شادی کرتے ہو نا فیملی سے تو آپ زیادہ خوش رہتے ہو, اگر آپ فیملی میں کرو تو وہ مطلب وہ دل اٹس ویری بیڈ. ہاں, وہ فیملی کی پوری ہسٹری میں جتنی ڈارکنیس ہے نا وہ ساری بیگیج اس بچے پہ آ جاتی ہے, اور وہ بیچارہ لڑکا ادھر سے بھی ڈانٹیں کھا رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی ادھر سے پریشر میں آ رہی ہوتی ہے, اور وہ پوری زندگی وہ بیگیج ہی لے کے نا پھر اس طرح سے رہتی ہیں. آج کل ویسے کچھ بچے جو نا یہ صحیح کرتے ہیں کہ پسند آ کے شادی وادی کر لیتے ہیں پیرنٹس میں ان کو. اب کچھ لوگ مطلب اب ماں باپ نہیں مانتے تو وہ پھر نا خود بھی کر لیتے کہ ٹھیک ہے پیرنٹس مان ہی جائیں گے, کیونکہ ماں باپ پھر انہوں نے تو مان نہیں جانا ہے. پھر کچھ ماں باپ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا تو مرنا جینا ختم, تم اب گھر آؤ, تمہاری ٹانگیں نہ توڑتے ہم تو آگ کر دیتے ہیں, ڈسون کر دیتے ہیں نا کہ ہاں وہ جو یہ جو پاکستان میں شادی ہوتی ہے اس کی کتنے انہوں نے ایونٹس کر دیے نا, بس کرو ختم نہیں ہوتے ہیں نا, ڈھولکی مائیوں برائڈل شاور ڈانڈی والا ابھی. اچھا نہیں پہلے تو ہوتا ہے بیچلر پارٹی ہو رہی ہوتی ہے, پھر برائڈل شاور ہے, اس کے بعد ڈھولکیاں ہو رہی ہوتی ہیں 6-7, پھر میلاد ہو رہا ہوتا ہے, پھر مایوں ہو رہا ہوتا ہے, میلاد بھی 3-4 کر رہے ہوتے ہیں, قوالی نائٹ ہے. بھائی تم لوگ نہیں دیکھو, آپ لوگ ایک کہتے ہو کہ پاکستان ایک غریب عوام ہے, تو یہ عوام اتنے پیسے کہاں سے لا رہی ہے؟ یہ عوام پیسے لے کے آتی ہے, کپڑے بھی خرید لیتے ہیں نا, برانڈز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جا کے. پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بہت مہنگائی ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن برانڈز کے اوپر تو ساری عورتیں جو ہوتی ہیں گر رہی ہوتی ہیں. ہاں, اور مطلب پیسے ہوں بھی تو بھائی ماڈیسٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بس شو آف. اور میں نے لڑکیوں میں یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ وہ ایون آپس میں بھی ڈسکس کری ہوتی ہیں, یار بس اب تو شادی کر کے جا ہی رہے ہیں, جتنے مہنگے کپڑے پیرنٹس سے بنوا سکتے ہیں بنوا لو یار, جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا انہیں نچوڑو اچھی طرح, یار بس کر دو. دس از سو رانگ. یہ جو ایونٹس ہیں نا آپ لوگوں کے, یہ جو 7-8 days کے, پلیز اس کو ختم کریں, سمپل نکاح کریں اور اپنے پیسے بچائیں, کچھ اچھی طرح سے یوز کریں ان پیسوں کو. آپ لوگ لوگوں کی ہیلپ اتنے اچھے لوگ, تم لوگ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ اتنے غریب عوام بیٹھی ہے, تم لوگ ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کو کھانا کھلا دیں, ان کو ان کی شادیاں کرواؤ یار, ان کی بچیاں جہیز, ایک تو یہ جہیز کی وجہ سے بیچاری بچیاں بیٹھے ہوتے ہیں شادی کرنے کے لیے, ان کے لیے جہیز لے دو یا کچھ ان کی سپورٹ کر دو. میں تو کہتی ہوں کسی طریقے سے. اچھا یہ سن پاکستان میں ایک لو آیا تھا کہ بھی کوئی جہیز کرے گا ڈیمانڈ تو اس کو آپ کیس کر سکتے ہو. ہو گیا ہے نا کیس کا, یہ ہے یہ پنجاب میں تو کافی اسٹرانگ ہے. جس سے ہم نے شادی کرنی ہے ہم اسی پہ کیس, اس پہ کیس کریں گے تو وہ شادی نہیں کرے گا, بس پھر ہماری بیٹی بیٹھی رہے گی اور وہ کہیں گے بات پکی ہوئی تھی, دیکھو شادی نہیں لے رہا, پھر اس پہ بھی نہیں لیتے. ایون مار پڑتی ہے بیٹی کو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں جا کے رپورٹ نہیں کر سکتے ڈومیسٹک وائلنس, کیونکہ پھر تو یہ لڑکا طلاق دے دے گا. یار یہ برانڈس والا بھی بہت چکر ہے نا, برانڈ زیادہ ہو گیا نا کہ پتہ نہیں یار. ہاں نا, اچھا جو بھی ڈریس پہنا ہو یہ کھاڑی کا سفیر کے, حالانکہ آئی سویئر پشاور کے صدر بازار میں زیادہ اچھا کپڑا ملتا ہوگا, مگر ہم پہنیں گے وہی کپڑا جا کے کھاڑی سے لے کے اور سفائر سے اور نشاط. اور جس نے نہیں پہنا ہوتا اس کو اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم تو بہت مطلب لو اسٹینڈرڈ کے پہنتی ہو, تم وہاں جایا کرو, تھوڑی اپنی لک چینج کرو. بھائی آپ کو ایسا ہونا چاہیے, آپ ڈنڈے سے بھی پہنو نا تو آپ پہ جچے گا, ہم نے پہنا, آپ اپنی پرسنالٹی ایسی بناؤ یار. اب مطلب نہیں بات بہت اچھی کی ہے یار, میں اپنی مجھے ہوتا ہے. اب میرے ہسبینڈ تھوڑے سے تھے, اب نہیں ہے برانڈ کانشیس نا, اب ان کو اتنا نہیں ہوتا, لیکن میں ایسی تھی, میں کہتی ہوں یار کہ ریڈی میں بھی چیز پڑی ہے, میری پسند کی چیز ہے, مجھے مل گئی ہے تو میں وہاں سے بھی اٹھا لیتی تھی. مجھے نہیں ہوتا کہ آپ نے وہی چیز ریڈی مہنگی شاپ پہ جا کے لینی کہ نہیں کیونکہ یہ برانڈ کی ہے تو میں نے یہی پہنی, میں ریڈی سے نہیں پہن سکتی. نہیں بھائی, میں تو مجھے جہاں سے جو چیز اچھی لگ رہی ہے میں تو اٹھا کے لے لوں گی.
اور تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو مجھے بڑا ہی نا میں ہرٹ بھی ہوئی, مجھے بڑی ہنسی بھی آئی, اور مطلب مجھے بڑا ویئرڈ بھی لگا. میں نا اپنے فادر کی گھڑی پہنتی ہوں اکثر, جب بھی کوئی اسپیشل موقع ہوتا ہے نا میں نے ان کی وہ یاد رکھی ہوئی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں یہ پہنتی ہوں, اٹس لکی فار می, ٹھیک ہے. اور میں ایک دن وہ پہن کے آئی ہوئی اور ایک پاکستانی خاتون سے میں ملی, اور انہوں نے کہا اچھا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا جی یہ میرے فادر کی گھڑی ہے نا, تو میں یہ پہن کے رکھتی ہوں. تو انہوں نے ایموشنل یا سینٹیمنٹل ویلیو نہیں دیکھی اس کی کہ یہ ان کی یاد ہے اس سے رکھی ہوئی ہے. وہ آگ سے کہتی ہیں کون سی برانڈ کی ہے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا مطلب اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اس گھڑی کی ورتھ برانڈ سے تو نہیں ہے نا. برانڈ کیا چیز ہے بھائی, مطلب پاکستان میں. اور یہ ایک ایکسپیکٹیشن کہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے تو بس اب یہ کوچ کے بیگ کوچ کی گھڑی سے کم تو ہونا نہیں چاہیے, چاہے وہ بیچارہ وہاں پہ رول رہا ہو. نہیں, اتنا کام کر کے ہم لوگ لائک پاکستانی لوگ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور یہ پیسے لگے اتارے اور وہ پھر فون آتے ہیں جس سے پہلے آئی فون لے آؤ, آئی فون لے آؤ, مطلب 5-6 آئی فون تو ویسے لے آنا کیونکہ وہ فری میں پڑے ہیں. وہ فری میں یہاں پہ سب کی مطلب ایک مت وجی پڑی ہوتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ یہ درخت ہمارے اپنے گھر پہ درخت لگا ہوا ہے, پیسے $, ایسے $100 اتارے ہیں وہاں سے, وہیں سے اتارتے اور رات میں گروسری کیا بات کرتے ہیں. لڑکے والے سمجھتے ہیں لڑکیوں کے گھر میں ایسا درخت ہے. پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے باہر کے ملک گیا تو اس کے گھر پہ درخت ہے, چاہے وہ بیچارہ پڑھنے آیا اور وہ $2 بچا کے کھا. ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے لڑکیوں میں ہی دیکھی ہے. سوری آج میں لڑکیوں کے اندر پتہ نہیں اتنی خامیاں کیوں نہیں پا رہی ہوں, حالانکہ میں وومن امپاورمنٹ میں بلیو کرتی ہوں, لیکن لڑکیوں میں بہت سی خرابیاں ہیں نا, جو بات ہے. اب ہسبینڈ گیا ہوگا دبئی میں جاب کریں, ٹھیک ہے. اب میں کیونکہ آئی ہیو بین اے ورکنگ وومن تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس پہ کتنا پریشر ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ وہاں نوکری کر رہا ہے, وہ ہر دوسرے دن اپنے میاں کو کال کر کے کہے گی مجھے نیا بیگ چاہیے, میرے لیے آتے ہوئے یہ گفٹس لے کے آنا, بچوں کے لیے یہ لے کے آنا. وہ بیچارہ پہلے ہی وہاں اکیلا کام کر رہا ہے, آپ اس پہ یہ پریشر ڈال رہے ہو. ہاں, اب وہ بیچارہ آنے سے پہلے 10 دن پہلے سے بس اب ٹینشن میں ہے کہ یار گفٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ سوچو اس کے حالات کے بارے میں سوچو. اور پھر یہ پریشر فیملیز پہ بھی ہوتا ہے, کوئی فیملی آ رہی ہے اچھا ابھی وہ گفٹ لے کے آئیں گے, بھائی وہ بیچارے افورڈ کر سکتے ہوئے تو لے کے آئے ہیں. ہاں کیا لے کے آئے. یہ ہوتا ہے کہ لائک جتنی دفعہ میں تو گئی ہوں پاکستان واپس, وہ یہ ہوتا ہے کہ لائک آپ ان کو دو بس 2 منٹ دیکھ کے خوش ہوں گے, ان کو پسند نہیں آئیں گے, بس ایسے کہیں گے اچھا. اور پھر نیکسٹ کوشچن ہوتا ہے اچھا آپ لوگ واپس کب جا رہے ہیں. مطلب یہ بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ یار ابھی تو آئے ہیں. اٹس نیور گڈ انف, وٹ ایور یو ڈو از نیور گڈ انف. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کوچ بھی دے دیں نا پھر بھی وہ خوشی ہوگی, اچھا وہ کہیں گے اچھا آئی فون نہیں لے کے آئے نا. وہ کوچ کی بیگ کی وہ جو ہوتی ہے نا اہمیت وہ ختم ہو جاتی ہے کہ یار اب آئی فون تو لائے ہی نہیں. ہاں, اور کوچ کا بیگ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرا اس کے ساتھ. یہ بڑا تو یہ برانڈیڈ بیگس ہو گئے, برانڈیڈ شوز ہو گئے, مطلب ہاں ٹھیک ہے سیل پہ کوئی مل جائے تو لے لوں گی, ورنہ اگر یار 500 کے شوز کون لے, پاگل ہے. $500 کی بات کر رہی, $500 کی. اب تو لنڈن میں 500 کا. میں کہتی ہوں میں جتنی بھی امیر ہو جاؤں تو میں یہ بیوقوفی کبھی بھی نہیں کروں گی. میں پھر بھی یہ کروں گی کہ یار جہاں سے جو چیز اچھی مل رہی ہے نا, بے شک وہ مطلب $50 کی بھی ہوگی, چلو یہ بھی میں اب زیادہ بتا رہی ہوں, مطلب $10 کی بھی ہوگی تو میں لے لوں گی. ہاں کیا فرق پڑتا ہے, کہ سمپل رہیں, خوش رہیں, اور اپنے سے مطلب آپ دیکھیں غریبوں کی مدد کریں. یہاں سے اگر آپ نے پیسے بھیجنے تو ان کی مدد کریں کہ آپ کریں کہ میں نے مطلب مائیکل کورس اور کوچ کے بیگ لینے ہیں اور میں نے شوز بھی اتنی مہنگی لینی ہے, آپ ان کی مدد کریں نا. کس کو دکھانا ہے یار, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. بس کمپٹیشن میں چل رہے ہیں سارے, بس سوسائٹی ہے نا, سوسائٹی کو ہمیں دکھانا ہے. وہ سوسائٹی میں مطلب لوگ ایسے ہیں, پھر تو ہمیں بھی ویسا ہی خود کو دکھانا ہے. اس کی بہو تو یہ لے کے آئی تھی, اس کی بیٹی یہ لے کے, اس کا بیٹا یہ لے کے آیا تھا, میرا ہسبینڈ تو یہ لے کے آیا, تمہارا کیا لے کے آیا. تو مطلب وہ یہ ہے نا کہ مطلب ہم ایسے نہیں تو کیا مطلب ہم مر جائیں, ہمیں سوسائٹی قبول نہیں کرے گی. نہ کرے ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. ہاں یہ جو پانی یہاں پہ پول ہے یہیں پہ اٹھا کے پھینک دینا سب کو میں نے. ہاں نا, مطلب یہ سارے یہ بہت چیزیں کمپلیکس کر دیتے ہیں, اور پھر اتنا پریشر بلڈ کر دیتے ہیں بیچارے وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, پیسے کما رہے ہوتے ہیں. مطلب میں کئی دفعہ ایسے دیکھتی ہوں, پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بھائی گفٹ کی ویلیو تو اگر مجھے انم یہ غم بھی دے رہی ہے نا لا کے, تو میں دل خوش ہونا چاہیے. گفٹ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ بھی آپ کسی کو چھوٹا سا گفٹ, یار گفٹ کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کو یہ رنگ بھی گفٹ کروں نا تو یار اس نے مجھے اپنی چیز دی ہے. ایگزیکٹلی, اس پہ بندہ اتنا خوش. مجھے اب میں آ کے کوئی انم سے کہوں کہ انم یہ آپ کی مجھے یہ واچ اچھی لگ رہی ہے تو انم مجھے دے دیں, میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ انہوں نے اپنی واچ دی ہے, اپنی پسند کی چیز دی ہے انہوں نے مجھے, جبکہ میں ایسے نہیں کرتی ہوں. مطلب جو میری فیوریٹ چیز ہوتی ہے میں کہتی ہوں مجھ سے مت مانگو پلیز, کچھ اور مانگ لو پر میری فیوریٹ چیز مجھ سے مت لو. لیکن اگر مطلب میں دوں تو بھائی آپ خوش ہو, میں بھی بڑی خوش ہوں گی یار اس بندے نے مجھے یہ چیز دی ہے. میں اتنے خوش رہنا نہیں دیکھتی یار اتنی مہنگی چیز مجھے دو گے تو میں خوش ہوں گی, ورنہ تو میں خوش نہیں ہوں. نہیں, یہ جو پاکستانی برانڈس کے کپڑوں کے چکر میں آپ لوگ رش میں ہے نا,
एक दफ़ा आपने सूट पहनना होता है, उसके बाद आप कहते हैं हाय अब ये मतलब ठीक है आपको पसंद आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब प्राइस पे क्या है 50,000 की तो बस शर्ट आती है, 40,000 का आपका ट्राउजर आ जाता है और फिर 10,000 का दुपट्टा वो एक ब्रांड का चला था। हाँ अच्छा, याद है ये ना? मैंने देखा कसम से। 40,000 का ट्राउजर था, 50,000 रुपीस की शर्ट थी और 10,000 का दुपट्टा नहीं, था। ये जो दुपट्टा एक मैंने देखा था 80,000 का दुपट्टा था एक, हाँ सिंपल शर्ट थी वो वो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी यार, वो जो सदफ मायरा कमर मैं में तो पहना हुआ। हाँ मायरा खान वाला, मायरा खान का हाँ। वाइट कुर्ता आया है, मैं देख रही हूँ इस कुर्ते पे क्या हीरे लगे हुए हैं, क्या है मायरा ये खान- आप मायरा अगर खान का लिबर्टी नाम। मार्केट चले जाएं आपको इतने अच्छे कुर्ते वहाँ से यार मिल जाएंगे अच्छे। एग्जैक्टली अच्छा मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मैं दुबई में थी, एक कॉन्फ्रेंस के लिए मीटिंग हो रही थी, तो मैं एक लड़की के साथ बैठी हुई थी, वो जर्मन थी ना, तो मैंने ऐसे इयररिंग्स पहने हुए मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, उससे मुझे कहा ओ वेरी नाइस इयररिंग्स, आपके और मेरे ना सेम लग रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ सेम ही लग रहे हैं। कहती है आई गॉट इट फ्रॉम ना, उसने मुझे जर्मनी की कोई जगह बताई, मैंने कहा ओके, मैंने कहा आई गॉट इट फ्रॉम लिबर्टी उसको इसका नहीं लगा। मैं दिल में सोच रही हूँ मेरे तो भाई 200 रुपए के आए थे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर के मुल्क में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और बात है कि ना मैं बताती हूँ चीज़ बिल्कुल सेम होती है। मैंने एक दफ़ा ना मैंने बैंगल्स लिए और मैंने वो कितने की लिए थे, कोई 100-200 की ली थी मैंने, और मैंने ना कोई ब्रांड था वो जो ऐसे जो ये ज्वेलरीज वगैरह सेल करते हैं ना, उनको एसेसरीज वाला जो एक पेज होता है, तो उस पर काफ़ी उस पर ना एक्ट्रेसेस भी थी, वो भी उनसे ना खरीदती थी चीज़ें यार, सेम टू सेम वही बैंगल्स था वहाँ पे, वो कोई 1200 के दे रहे थे, पता नहीं कितने के। मैंने वहीं पे कमेंट किया, मैंने कहा भाई साहब मैंने ये कल ही लेके आई हूँ शॉप से, मैंने कहा इतने के मैंने लिए हैं, तो यार तुम लोग अपने प्राइजेस लगा देते हो। यहाँ बैठ के भी जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मतलब एक कल मैं ब्रांड देख रही थी तो उनका नाम नहीं मिलूंगी, लेकिन ना वो सिंपल सी स्वेटशर्ट है और टी शर्ट उस पर सिर्फ यहाँ पे इतना से लिखा है पाकिस्तान, और मैंने कहा कि यार बड़ी अच्छी है, तो मैंने ना उसकी वेबसाइट पे गई $129 ओह माय गॉड, और मैंने कहा तो मुझे टी शर्ट दो, मैं लिख देती हूँ तुम्हारे वही मैंने कहा कि मैं अपनी टी शर्ट ले आती हूँ मार्केट से, उसके ऊपर लिख दो आप। यार सिंपल सी, इतना और कुछ नहीं है, वो सिंपल बस शर्ट पाकिस्तान का नाम लिखा है, तो आप और वो इतना कहते हैं करो। कि जी पाकिस्तान से वो सस्ती मंगा लेते हैं और यहाँ पे लोगों को अच्छा पाकिस्तानी ने बनाया हुआ लूट। आई थिंक हमने बहुत बैशिंग कर लिया आज लोगों की भी, कॉन्सेप्ट्स की भी, हमारा बनता है, mindsets की भी। कॉन्सर्ट्स की तो हमने की नहीं खाया, कॉन्सेप्ट्स की नहीं अच्छा कॉन्सर्ट्स की नहीं, हमने आज बहुत बैशिंग कर ली है आपके माइंडसेट्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, और जो प्लीज लोग माइंड ना कीजिएगा, ये सिर्फ हम तीनों के ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन है, और ये अच्छे सिचुएशंस अराउंड अस, नॉट दैट इट्स आवर पर्सनल लाइफ। हाँ अच्छे इंटेंशन से आ रहे हैं, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, है ना। चलिए ये तो गलत बात है यार, आपने ये क्यों किया? आप देख सकते हैं कि हम लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ा है ब्रांड से। अपने इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली यूज करें प्लीज यार प्लीज अपने नाम का इतना गलत फायदा मत उठाएं, ठीक है, जो चीज जितने की मिली है उसको उतने में ही सेल करें। लोगों को यार थोड़ा सा आप कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आप औकात से बाहर कर दें, नहीं ये तो गलत खुद भी एजुकेट हो, लोगों को भी एजुकेट करें, अच्छा इन्फ्लुएंस करें, ये ना दिखाएं कि मैंने पर्दे कितने के लिए और मैंने अब्बू ने थप्पड़ मारा। कसूर आपका अपना भी है जो देखते हैं, ठीक है, कसूर उनका भी है जो देखते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं रोज दिन रात बस टिकटॉक देखते हैं। देखती हूँ माँ सफदर के ब्लॉग्स देखती हूँ मैं, मुझे अच्छा फैमिली ब्लॉग्स हैं उसके, हाँ उसके ब्लॉग्स मुझे अच्छे लगते चलें हैं। विल वॉच महा सफदर, हाँ देखिएगा। और हिरा को गिरते हुए मत देख। मैंने नहीं देखा, आई स्वेयर मैंने नहीं देखा, तो मेरी ये मेरी आंखों में गुनहगार काम नहीं। So thank you so much for watching, you guys. and yes thank you, प्लीज सब्सक्राइब टू अनम्स चैनल। सब्सक्राइब। मैं पढ़ी लिखी बातें प्लीज आप इनकी वीडियोस देखा करें, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, यहाँ के बारे में बताती हैं, तुम लोग देखें, आप पाकिस्तान में वो सब चीज़ें अप्लाई करें प्लीज। बड़े बड़े जो है ना मतलब बड़े बड़े शहरों में लोग बहुत पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों वाली हरकतें करते हैं, तो प्लीज़ वो मत किया करें। बिल्कुल। जो आप स्टडी करें ना, जिस तरह से वो करें ना, जिस तरह से आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उसको उस तरह से ले, अपना जो पेंडूपन है ना उसको ना ख़त्म करते हैं, छोड़ दें उसको। हाँ तो जो क्रिंजी बनना छोड़ दें, क्रिंजी बनना छोड़ दें, हाँ जजमेंटल बनना छोड़ दें, और प्लीज 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 ये डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस और मनी ये सब खत्म कर दें। जहेज को भी खत्म कर देगा, लड़कियों की ज़िंदगी आसान कर दें प्लीज़। और जब लड़के ये बात करते हैं ना कि लड़की भी तो डिमांड करती है, यार लड़की डिमांड क्यों नहीं करेगी? अल्लाह ताला ने लड़के पे जिम्मेदारी की है, लेकिन आजकल की लड़कियाँ पढ़ी लिखी लड़की है, वो यही करेंगी कि यार हमारी शादी होगी ना, लड़का लड़की मिलकर कमाएंगे, घर चलाएंगे, हाथ बटाएंगी। तुम लोग एक दूसरे का साथ दो ना, तुम लोग से कौन कह रहा है कि यार बस हर चीज़ लड़के पे, लेकिन यार जहेज तो तुम अपना इतना तो खुद कुछ कर लो ना, मतलब एक बेड ही दे दो ना, और क्या ही चाहिए तुम लोगों को? तो बच्चे फौरन तो पैदा नहीं हो जाएंगे ना आप लोगों के। बस कंट्रोल योरसेल्फ, सीरियसली कंट्रोल हो दे। मुझे बहुत इस चीज़ पे
پھر ہوتا ہے کہ نہیں تم لوگ اس کو ختم کر دو یار, جہیز کو ختم کر دو, زندگی آسان کر دو پلیز. ایگزیکٹلی. کتنی لڑکیوں پہ پریشر ہے, کتنے ماں باپ پہ پریشر ہے. شادی شدہ بچی, شادی شدہ کہہ رہی ہوں, 2 بچوں کی ماں, اس کو ڈائیورس دے دی ہے. کیوں ڈائیورس دی ہے, مطلب کیا؟ اور اچھے ریلیٹیو پہ آ کے کان بھرتے ہیں کہ بھی تمہاری طرف یہ ڈائیورس لڑکی, تم لوگوں کے لیے ڈائیورس اتنی آسان بات ہے, یہ 76 پڑیں گے اللہ تعالیٰ سے. تم سب سے مکروہ ناپسندیدہ کام ہے اسلام میں. بے شک یہ حلال بھی ہے, آپ کسی اس پہ آپ ڈائیورس لے سکتے ہیں, کوئی آپ کو نہیں پسند آ رہا, آپ کی زندگی اچھی نہیں گزری, آپ ڈائیورس لے سکتے ہیں. جہیز پہ نہیں, اس 3 چیزوں پہ تو آپ جہیز پہ تو مطلب بڑا ہی مٹیریلسٹک سی ریزننگ ہے. چھوٹی چھوٹی بچی ہیں, ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈائیورس دے کے, اب وہ بیچاری کیا کریں, بچوں کے بچے بھی رل جاتے ہیں, بچے رل جاتے ہیں. ہاں تو خیر کہ چیز ڈپریسنگ نوٹ پہ نہیں کرتے, ہیپی ہو کے کرتے ہیں. ہیو اے گڈ خوش ڈے, رہنے دیں, جی خود بھی اور دوسروں کو بھی جینے دیں. تھینک یو, اللہ حافظ, بائے.